Point number 5 is, we'll say that the fifth point, the strong ligand have tendency to pair up the electrons the unpaired electron, whereas weak ligand cannot. Weak ligand cannot. Strong ligand have tendency to pair up the electron, whereas weak ligand cannot. Ligand cannot pair up the electrons. तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकते वीक लिगेंड्स. अगर ऐसा होगा तो अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता देते हैं. 10 so we can write that. उसको next point में लिखना है. The complex which has unpaired electron in its configuration. Unpaired electron in its configuration. Is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक बोल देंगे. Then it will be diamagnetic in nature. So it will be paramagnetic in nature. Configuration is paramagnetic and colored complex. तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो अपन को पता है. Where magnetic moment, ये तो अपन ने कैलकुलेट किया है. Mu will be equal to under root of n into n plus 2 bm. ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है. और अपन को पता है where n is the number of unpaired electrons. Where n is number of unpaired electrons. n जो होगा that will be the number of unpaired electrons. ठीक है ना. तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है if n is equal to 1 तो mu will be equal to 1.732. If n equal to 2 mu will be equal to 2.87. If mu, that is n equal to 3 mu will be equal to that is 3.90. Bohr magnet. These all are Bohr magnet. N equal to 4, we will write that mu will be equal to 4.80. And mu equal to, that is n equal to 5, then we'll say that mu will be equal to 5. That is 82, like that we can write that. So ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर म्यू का वैल्यू गिवन है तो डेसिमल के पहले वाला नंबर इज नंबर ऑफ अनपेड. और बोर मैग्नेट्रॉन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 bm will be equal to Bohr magnetron, that is a unit, EH upon 4 pi m into c. ऐसे बता सकते हैं. E is charge of electron, H is Planck constant, C velocity of light, M is mass of electron, 4 और pi अपन को पता है. So we are able to calculate what is 1 Bohr magnetron.
तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते। So like that we can predict the paramagnetic nature of your complex. अभी इतना पॉइंट काफी होगा. And if there is no unpaired electron, we know that it will be diamagnetic as well as colorless. If there is no unpaired electron, the complex is diamagnetic. The complex will be diamagnetic. तो बता सकते हैं अपन कि भाई what is paramagnetic, what is diamagnetic. ठीक है. So we can write like this. Now let us have examples. भाई ठीक है, हमने पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखा. All the bonds are metal, that is between the metal and the ligand are coordinate bond. Metal must have empty d orbital to accommodate the electron donated by the ligand. ठीक है. Then we have written that hybridization will be according to valence bond theory. There is only two type of hybridization are possible. एक तो sp3 होगा. Hybridization is possible in coordination number 6. sp3 d2 या फिर d2 sp3. Similarly for tetrahedral it will be sp3 or dsp2. And then we check that the pairing of electron by the strong ligand but not by the weak ligands. So in case of, we'll say that valence bond theory, there will be certain limitations. But let us check how we can write that or how we can sort out that limitations and all. So chalo dekhte hain. So we'll discuss the geometry and structure of complex with coordination number 6 की बात कर लेते हैं पहले. And we know that ये valence bond theory में we can discuss the complex only with one type of ligand. मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि हम सिर्फ होमोलेप्टिक लिगेंड्स के बारे में ही इसमें डिस्कस करेंगे मेनली. तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इसके लिए तो we'll write that for coordination number 6. So write that geometry of complex with coordination number equal to 6. क्या करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिखेंगे. और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो देखते ही अपन को पता चल जाएगा कि only two type of hybridization is possible. So hybridization will be, hybridization जो होगा वो या तो sp3 d2 होगा या फिर d2 sp3 होगा. So दो ही टाइप के hybridization possible है. So I will write that hybridization is sp3 d2 और d2 sp3. इसके अलावा कोई hybridization नहीं हो सकता. ये दोनों ही hybridization अपन ने लिखे हुए हैं. So these are the two hybridization we said that sp3 d2 और ठीक है d2 sp3. बस इन्हीं दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन होगा. ठीक है. तो लेट अस टेक एग्जांपल. अब एक एग्जांपल तो हम कंप्लीट लिखेंगे, राइट ना. एक एग्जांपल अपन इस टाइप से लिखेंगे कि वो स्कूल में भी एग्जांपल दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं. मतलब स्कूल में तो हमें लिखना ही है तो आप स्कूल के लिए भी उसे लिख सकते हैं. वैसे एक एग्जांपल तो अपन बिल्कुल स्कूल के जैसे लिखेंगे कि हमें स्कूल में कैसे बताना. क्योंकि स्कूल वाला मेथड जो होता है वो लेंथी मेथड होता है लेकिन बड़े काम का मेथड होता है. उसमें अपन काफी सारे इफ और बट भी बता सकते हैं. फिर अपन डायरेक्टली चेक करना सीखेंगे कि अपन कैसे
कॉम्प्लेक्स को देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर लेंगे। अब जो भी कॉम्प्लेक्स मुझे आपको बताने हैं उनमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड ही होगा। तो एग्जांपल लिखते हैं अपन और एग्जांपल 1 बताते हैं अपन। तो एक ले लेते हैं अपन, क्या Ni, ये अपन ऐसे कर लेते हैं, NiCN6। तो NiCN6 लिखने के बाद we'll write that it will be, सपोज करते हैं 4 नेगेटिव। तो वी कैन राइट दैट कि भाई Ni, अपन क्या करेंगे पहले, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर विल बी सर्टेन पार्ट्स जो मैं डिस्कस करने होंगे। तो आप स्कूल में कैसे एक्सप्लेन करोगे, दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni, पहले लिखेंगे AR 4s2 3D। फिर अपन लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni plus 2i, दैट विल बी, अपन लिखेंगे AR 3D8, बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni is +2। तो पहले अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज इक्वल टू +2, आपको पता रहेगा। फिर अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल के लिए हो गया, तो विल राइट दैट लाइक दिस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन दैट इज Ni +2। मैं Ni +2 को ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका D, दैट इज 3D8, ये आपका 3D8 हो गया। So this will be 3D8। अब 3D8 के बाद इसमें अपन एक 4s2 भी लिख सकते हैं, ये 4s2 हो गया। इसके बाद मैं 4p भी लिख सकता हूं, तो इसको 4p भी लिख सकते हैं। तो इसमें अपन ने जब आयनाइज किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए, पहले इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन थे, बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आयनाइज करने में हमने हटा दिए, और D के 8 इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस। We know that D के 8 इलेक्ट्रॉन will be like this। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर अप तो कर सकता है, क्योंकि अपन को एक बात पता है, यहाँ पर D और इलेक्ट्रॉन और भी लिख सकते हैं अपन, बट इट विल बी 4D। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो ये 4D होगा। अब अपन क्या करेंगे कि भाई जब हम इसमें ये 4D है, अब इसके बाद क्या चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे नाउ चेक द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लेकिन उससे पहले अपन को एक बात पता रहेगा कि आप जो भी करो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें जो भी कैलकुलेशन करो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक बात अच्छे से पता है, वो क्या, हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर D2sp3 होता है, इसका मतलब ये जो है ये 3D ऑर्बिटल यूज किया आपने, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो इसका मतलब है कि ये आपने 4D ऑर्बिटल यूज किया। दैट इज द डिफरेंस, D2sp3 और sp3d2। D2sp3 का मतलब हो गया कि अंदर वाला इनर D ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, इनर D ऑर्बिटल मतलब 3D ऑर्बिटल, और अगर बाहर वाला D आ रहा है इसका मतलब यू आर यूजिंग 4D ऑर्बिटल। बाद में अपन जाके इनको डिफरेंशिएट, वो उनको कैटेगराइज भी करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सीज एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सीज। आउटर ऑर्बिटल का मतलब है जिनमें 4D यूज हुआ, इनर ऑर्बिटल का मतलब है जिनमें 3D यूज हुआ। तो हम ये बात भी चेक करेंगे कि भाई इसमें 3D ऑर्बिटल जैसे हैं और इसमें 4D ऑर्बिटल ऐसे है। अब होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास दो ही है, या तो ये या फिर ये, इसके अलावा तीसरा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज ओनली अ फर्स्ट थ्योरी।
वेरी फर्स्ट थ्योरी है तो लिमिटेशन भी बहुत सारे होंगे। तो काफी जगह मैं बोलूंगा कि आप ऐसे कर देना, ठीक है, बट जो मैं आपसे बोलूंगा कि आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, तो उसका मैं आपको रीजन भी दूंगा इन द नेक्स्ट थ्योरी, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरी में उसका रीजन है। इधर अपन चेक करेंगे, नाउ चेक द, तो आपको ये पता चल गया कि भाई क्या करना है अपन को। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन होंगे, अगर मैं ये लिखूंगा तो 3D यूज किया, और अगर ये लिखूंगा तो 4D ऑर्बिटल यूज किया। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने वाले ऑर्बिटल ये हैं। हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने वाले ऑर्बिटल सिर्फ यही होंगे। तो ये तो पक्का हो गया ना अपने पास कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने वाले ऑर्बिटल्स बस यही होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा देखो इधर D2 हो गया जो 3D2 है, इधर S है, इधर P3 है, और इधर फिर D2 है, लेकिन ये वाले 4D2 है और इधर वाले 3D2 है। मतलब या तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp, दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वी गॉट इट भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, और व्हाट डू यू मीन बाय D2sp3 और sp3d2, वो समझ में आ गया अपन को। अब मैं इस पार्ट को हटा लेता हूं, ठीक है ना, और इस पार्ट से अपन ये चेक करते हैं कि आगे क्या पोस्टुलेट्स के हिसाब से। तो अपन कहेंगे कि भाई देखो यहां पर आपने 8 ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। नाउ वील से दैट नाउ चेक द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। हमें कैसे पता, मैंने आपको कल बताया था कि भाई आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इतना तो याद रखोगे ना, डोनर एटम से, कार्बन इज अ बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बेटर डोनर देन हेलोजन्स। ये तो डोनर एटम आपको पता है ना, ये तो पता, मैंने आपको कल बताया था कि भाई ये डोनर एटम तो आपको याद रखना ही रखना है। तो अगर ये दोनों डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अगर ये दोनों डोनर एटम है तो वीक लिगेंड है। तो डोनर एटम इसमें क्या होगा, कार्बन, तो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सो अपन ने लिखा द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, it has tendency to pair up the unpaired electrons, so it has tendency to pair up the unpaired electrons, the unpaired electrons, pair of the unpaired electrons। तो उसका टेंडेंसी होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने का इन मेटलाइन। ये भी अपन ने पोस्टुलेट में लिखा है ना, इन मेटलाइन। तो वो क्या करेगा, अपन ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनको पेयरिंग कर सकता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ला सकता है। तो इसको लाएगा अगर इसमें, तो एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, डी ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा ये इसको पेयरिंग कर देते हैं, लेकिन उसमें पेयरिंग करने से मतलब इट कैन डू लाइक दिस, वो ऐसे कर सकता है कि भाई 1 2 3 4 ऐसे था, 5 6 ये अपने पास था, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल देगा, पेयरिंग हो जाएगी। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर लेते हैं तो विल गेट लाइक दिस, एक ऑर्बिटल खाली आ जाएगा, और जितने भी मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाने हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। मतलब इसमें अब कोई भी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि भाई यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए कॉम्प्लेक्सेस में हमको क्या चाहिए, कंप्लीट एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। व्हाई इट इज सो, बिकॉज सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अभी एम्प्टी ऑर्बिटल तो चाहिए, सो वी गॉट द एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन ऑर्बिटल तो एक ही है,
और आपने कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। अभी अगर D2sp3 है तो मुझे 2d ऑर्बिटल चाहिए 3d के खाली। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 2d ऑर्बिटल खाली चाहिए। या फिर इधर तो खाली पड़े हुए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि D2sp3 में 2 तो खाली है। तो यहां पर कितने ऑर्बिटल अपन को खाली चाहिए थे? 2। और बन रहे हैं कितने? 1। मतलब वो भी नहीं बनेगा। वो भी नहीं बनेगा मतलब? हाँ, तो पेयरिंग लिगेंड तभी करेगा जब उसे कम से कम 2d ऑर्बिटल खाली मिले। अगर 2d ऑर्बिटल खाली मिल सकते हैं पेयरिंग करके तो ही पेयरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। सो पेयरिंग करने से एक ही d ऑर्बिटल खाली हो रहा है, इसलिए इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है ना। सो पेयर ऑफ द इन द मेटल लाइन लाइक दिस, बट ड्यू टू दिस we get only one empty orbital. We get only one empty 3d orbital. So pairing will not take place. So pairing will not occur. पे होने का कोई फायदा ही नहीं, तो पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए पेयरिंग नहीं होने वाली। तो अगर उसमें पेयरिंग नहीं होगा तो अपन कहेंगे अगर इसमें पेयरिंग नहीं होगा तो फिर क्या? तो अपन कहेंगे अगर पेयरिंग नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो CN होगा वो इनमें ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बता दें? sp3d2 बता दो। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ NiCN होल 6 है ना, और ये 4 नेगेटिव, और ये कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा? इट विल बी लाइक दिस। तो इसके लिए तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे रहेंगे क्योंकि पेयरिंग तो नहीं होने वाली, सो दे विल रिमेन लाइक दिस। अब अपन क्या करेंगे? अपन 4s में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अपन कहेंगे भाई लो, ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है, 4p है, और ये 4d है, और ये 4d हो गया। तो अपन क्या करेंगे कि CN जो होगा ना, दैट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। CN 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए डोनेट करेगा, CN 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CN, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 6 ligands are there, 6 orbital empty orbital are required. So due to these 6 empty orbital जो अपने पास given है, the 6d empty orbital, तो अपन कहेंगे ये जो है इनकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आएगा वो क्या आएगा? sp3d2। सो अपन लिखेंगे एक ऐसा 3p है और 2d को मिक्स किया और 6 नए ऑर्बिटल बनाए। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। therefore hybridization is sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो अपन कहेंगे अब इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 unpaired electron, it is paramagnetic। 2 unpaired electron, it is paramagnetic। पैरामैग्नेटिक है और उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिख सकते हैं अपन। सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड म्यू विल बी इक्वल टू कितना? दैट विल बी इक्वल टू 2 गिवन है ना हमको, सो अंडर रूट ऑफ, सो विल राइट दैट, इससे कैलकुलेट कर लेंगे जो अपन ने पहले लिखा था ना, अंडर रूट ऑफ n into n plus 2, तो अपन लिख लेंगे उससे, दैट इज 2.87 bm। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द विजिबल रीजन विल गेट एक्साइटेड, so we'll say that it will be colored। तो ये colored भी होगा, ठीक है।
तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये तो मतलब ये BM हो गया और ये कलर्ड भी होगा। तो ये अपन बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अपन को थोड़ा सा एक आइडिया लग गया कि भाई कैसे अपन को कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना होता है कि वो पेयरिंग होगी या नहीं होगी। सो दिस विल बी द मेन पॉइंट फॉर अस कि हमें क्या करना होता है, और आपको स्कूल में ऐसे ही बताना पड़ेगा और इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके बता देना भाई कि मतलब ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो हम ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री कैसे लिखेंगे अपन, तो भाई कहेंगे अपन ना दिस इज Ni+2 और sp3d2 के लिए विल हैव अ ज्योमेट्री लाइक दिस विल बी द ज्योमेट्री ऑफ राइट ना। ये Cn हो जाएगा, ये भी Cn होगा, ये भी Cn होगा, ये भी Cn होगा, ये भी Cn होगा और ये भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा। सो ये अपने पास आ गए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे। तो दिस विल बी राइट ना ऑक्टाहेड्रल शेप। सो ये अपना ऑक्टाहेड्रल शेप आ गया, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया और बाइपिरामिडल लिख देंगे, बता देंगे इट इज द शेप इज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल शेप। सो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा शेप, वी नो दैट। तो ये अपन बता सकते हैं भाई ऑक्टाहेड्रल शेप है। सबको समझ में आया। नाउ वी कैन हैव अनदर कॉम्प्लेक्स। अपन एक दो कॉम्प्लेक्स और लेंगे जिसमें थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्टली मेटल लाइन लिख सकते हैं। बट स्कूल में आप सारी चीजें एक एक चीजें लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा, राइट। तो अपन लिखते हैं आगे, दैट इज मैं इसको हटा देता हूं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही पढ़ रहे हैं अपन, बट अभी अपन क्या करेंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और एक दो कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद फिर हमें एक आइडिया मिलेगा, उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे, क्योंकि हमें जनरलाइज करना पड़ेगा आफ्टर हैविंग सम फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो चलो देखते हैं भाई क्या करना है अपन को। तो सपोज मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लेते हैं अपन कि मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज अनदर एग्जांपल। तो एग्जांपल 2 ले लेते हैं अपन। एग्जांपल 2 में मेरे पास कोबाल्ट Cl6, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ना यहाँ पर ही लिख देता हूँ 3 नेगेटिव, या फिर आप इसको ऐसे लिखो तब भी चलेगा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एक ही बात है। क्योंकि हमें ज्योमेट्री और शेप तो बॉक्स के अंदर जो लिखा होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, ज्योमेट्री तो हमें उसी की ही बतानी होती है, राइट। अगर बाहर कोई कैटायन या एनाइन लिखा हुआ है, बिकॉज कैटायन लिखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे, एनाइन लिखा होगा तो राइट हैंड साइड पे, क्योंकि किसी भी सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट पहले लिखा होता है और एनाइनिक पार्ट बाद में लिखा होता है। कैटायनिक पार्ट पहले लिखा होगा और एनाइनिक पार्ट बाद में लिखा होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें अपन ऐसे बता देंगे भाई इसमें कोबाल्ट है, तो अपन लिखते हैं भाई लोग कोबाल्ट आ गया, तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं कि कोबाल्ट इसमें कितना होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा तो विल राइट लाइक दिस, दैट इज +3। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं, तो AR होगा और उसके बाद अपन लिख सकते हैं 4s0 और 3d6 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट विल बी दैट इज आर्गन, और उसके बाद अपन लिखते हैं 4s2 और 3d, कोबाल्ट में क्या आता है 7 आता है, 3d7 अपन ऐसे लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, कोबाल्ट +3 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे हटाए और 1 इलेक्ट्रॉन इससे हटाए, so we got the configuration like this. Then we can say that इसमें अपन बता सकते हैं भाई कि भाई इसमें ना, therefore I can write that, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, so AR हो गया, और इसके बाद ही अपन इसमें बॉक्स बना देते हैं। So we know that कोबाल्ट +3 के लिए मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूं, कोबाल्ट +3 है मेरे पास, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दैट इज 3D के बॉक्स बना देते हैं,
ये 3d हो जाएगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस, वी नो दैट 6 इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिख लेते हैं भाई ये 4s है, ये 4p है, और 4d भी लिखेंगे अपन, ये 4p होगा और 4d इसके बाद लिख सकते हैं अपन, ये 4d होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद हमें चेक करना होता है लिगेंड्स, ठीक है ना। इसके बाद हमें चेक करना होता है लिगेंड्स को। तो लिगेंड्स में क्या होता है, वी यूज्ड टू राइट दैट, भाई जैसे ये है तो इसमें अपन लिगेंड्स के लिए क्या लिखेंगे, अब अपन चेक करेंगे कि इसमें लिगेंड तो Cl था और हैलोजन तो वीक लिगेंड्स होते हैं, सो द लिगेंड इज वीक, द लिगेंड इज वीक। अब इसमें लिगेंड क्या होगा, वीक होगा, तो सो इट कैनॉट पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो ये वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर अप नहीं कर सकता, ये पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा तो इनमें बॉन्ड नहीं बन सकते। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑल द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो हमको ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी चाहिए इलेक्ट्रॉन, सो कैनॉट पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे अगर इनको पेयर अप नहीं कर सकता वीक लिगेंड, तो जो ये अनपेयर्ड, जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, दे विल बी यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। So the empty orbitals, remaining of empty orbitals, है ना, empty orbital of 4s, 4p and 4d will be used for hybridization. So empty orbital of 4s, 4p and 4d are used for hybridization, for hybridization। तो इनको ही यूज करेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ठीक है। अब ये पेयरिंग तो हो नहीं सकता, लेकिन इनको तो यूज कर सकता हूं ना। तब तो सीधा सीधा यहीं से पता चल गया मुझे कि ये और ये, क्योंकि 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अपन को 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, तो एक इसका हो जाएगा, 3 इसके हो जाएंगे और 2 उसके हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा अपन को। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स गिवन है अपन को COCl6 3 नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 3d तो अपन को वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 3d आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और अपन कहेंगे ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कौन, Cl, और फिर 4p में भी इलेक्ट्रॉन देगा, सो Cl के इलेक्ट्रॉन अपन यहां भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 Cl हो जाएंगे अपने पास, और बाकी 2 बचे हुए, इधर कितना Cl हो गया, 4 हो गया, तो बाकी 2 बचा हुआ Cl अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक Cl होगा, यहाँ पर एक Cl होगा, तो ये हो गया। तो एक S यूज किया, 3 P यूज किए, 2 D यूज किए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ये अपन ने यूज किया इतना, राइट ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो अपन कहेंगे sp3d2, therefore hybridization is sp3d2, hybridization is sp3d2 and it's paramagnetic। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना अपन को आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बता देंगे। सो एंड म्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 होता है, तो लिख देते हैं भाई अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, और बता देते हैं भाई इसमें 4.8 है ना, 4.80 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा, 4.80 bm, that will be the magnetic
मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर्ड तो होगा ही होगा, सो इट इज कलर्ड, सो इट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये ना कलर्ड कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेना है, एग्जांपल 3। अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। अभी मेरे पास गिवन है कोबाल्ट, सपोज कर लेते हैं अपन NH3 या CN ही ले लेते हैं, इट्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड और 3 नेगेटिव है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे अपन को गिवन है तो अपन क्या करेंगे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो लिखा ही हुआ है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, तो मैंने इसमें कोबाल्ट +3 का, बिकॉज ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही बता दो आप। तो मैं लिखूंगा ऐसे, कोबाल्ट +3 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वैसे तो वो भी लिखा ही हुआ था, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूं। ये हो गया, ये 4s हो गया, ये 3d हो गया, ठीक है। और यहां पर मैं 4p लिख लेता हूं, ये 4p हो गया और ये 4p हो गया, ये 4p हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, अगर लिगेंड वीक होता है तो पेयरिंग नहीं होता है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, तो अपन कहेंगे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को आप इसमें शिफ्ट कर दो और इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप इसमें शिफ्ट कर दो, दैट इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर हमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये पेयरिंग का क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द लिगेंड। मतलब जब अपन ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन लिखेंगे तो अपने आप ही वो पेयर्ड हो जाएंगे, बिकॉज लिगेंड will force due to that repulsion of electron of the ligand and the metal ion, 3D metal ion, वहां पर वो लिगेंड क्या करते हैं, फोर्स करते हैं इसको पेयरिंग के लिए, लिगेंड के स्ट्रेंथ की वजह से। नेक्स्ट थ्योरी में उसका एक्सप्लेनेशन है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको पेयरिंग करवा देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे द कोबाल्ट को लिए अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स इज लाइक द CN6 and 3 नेगेटिव। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसको पेयरिंग कर लेंगे अपन, इनको अगर अपन पेयरिंग करेंगे तो अपन ऐसे बना देते हैं भाई पेयरिंग के लिए। तो मैं इसको पेयरिंग के लिए बना देता हूं और इसको 4s लिख लेते हैं, ऐसे लिखा रहने देते हैं इसको 4s, और ये 4p हो जाएगा और फिर 4d हो जाएगा। तो फिर 4d भी लिखते हैं, ये 4d है। तो अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, ये तो पेयरिंग हो गई। अब क्या, दो एम्प्टी ऑर्बिटल आ गए अपने पास, इधर भी एम्प्टी ऑर्बिटल है और इधर भी एम्प्टी ऑर्बिटल, तो दो एम्प्टी ऑर्बिटल आ गए अपने पास। तो अपन दो एम्प्टी ऑर्बिटल को कैसे लिखेंगे, तो विल राइट लाइक दिस, भाई ये दो एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए अपने पास, यहां पर है। तो अब लिगेंड जो अपने पास गिवन है वो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। कितने हो गए, 6Cn होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा फिर इस केस में हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3, और D2 यूज होने का मतलब है अगर अंदर D आएगा तो वो कौन सा D ऑर्बिटल होगा,
3d का d ऑर्बिटल होगा। बाहर कौन सा होता है, अगर d2sp3 होगा तो 3d ऑर्बिटल यूज होगा, और अगर d2sp3 नहीं होगा तो वी नो दैट व्हाट इट इज। तो अपन क्या कहेंगे भाई, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में कंपैरिजन देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 2 में भी पेयरिंग क्यों नहीं किया अपन ने, क्योंकि लिगेंड वीक था। इट कैन नॉट पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इधर लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ओनली स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैन पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट द वीक लिगेंड। सो वहां पर हमने पेयरिंग नहीं किया क्योंकि वहां पर क्या था, लिगेंड इज वीक, और यहां पर क्या है, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो हमने पेयरिंग किया। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3, ठीक है। एंड म्यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा, और डायामैग्नेटिक होगा तो अपन उसे कलरलेस बोलेंगे, मतलब दिस इज अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स। एवरीबॉडी गॉट इट, कि अपन को कब पेयरिंग करना है, कब नहीं करना है। ना आई विल टेक अनदर एग्जांपल। तो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, और ये गॉट इट कि भाई हमें कब पेयरिंग शो करनी है, कब नहीं पेयरिंग शो करनी है। जब कार्बन डोनर एटम होगा या नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, पेयरिंग 100% होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को मैंने कैटेगराइज किया है, वो आपको पता है, ठीक है। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूं फिर, और चेक करते हैं अपन को दूसरे एग्जांपल्स को। दूसरे एग्जांपल को अपन चेक करते हैं फिर। अब मान लो मेरे पास एग्जांपल गिवन है ऐसे, तो सपोज करते हैं अपने पास एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना, और एग्जांपल 4 मान, ठीक है। और मैं कहूंगा मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं कि भाई दैट इज, ऐसे करते हैं, दैट इज टाइटेनियम H2O होल 6। वैसे मोस्टली हाइड्रेटेड आयंस ही बनाते हैं, तो अगर अपन टाइटेनियम में ऐसे लिखेंगे H2O तो होल 6, और इसको ना 3 पॉजिटिव कर लेंगे, तो कहेंगे ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो आप। अब ना डायरेक्टली जैसे अपन ने जैसे मेथड वन लिखा था ना, और 2 को भी मोस्टली अपन ने लिखा, तो जैसे मैंने मेथड 1 लिखा ना, आप स्कूल में बिल्कुल वैसे ही लिखोगे सारे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले आप, स्कूल में आपको वैसे ही लिखने पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं मतलब डायरेक्टली अपन थोड़ा सा चेक करेंगे कि अपन कैसे बताएंगे कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, टाइटेनियम अपन को गिवन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कहेंगे भाई 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो AR लिखूंगा, और ये हो जाएगा 4s2 3d2, ये बन जाएगा। अब आपने कहा टाइटेनियम +3, तो मैं लिखूंगा Ti+3, दैट विल बी इक्वल टू AR, ये 4s0 3d1 बचा मेरे पास बस। अब अगर अपने पास 3d1 बचा हुआ है तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज 3d1, ठीक है, विल राइट लाइक दिस 3d1 के लिए। तो व्हाट आई विल डू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ti+3i, तो मैं लिखूंगा दैट विल बी 3d1, ठीक है ना। मैं इसको 3d1 लिख लेता हूं, ये हो गया अपने पास 3d, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है,
और फिर मैं लिखूंगा 4s, फिर मैं लिखूंगा दैट इज 4p, और फिर मैं लिखूंगा दैट इज 4d। ये है अपने पास। तो अपन कहेंगे अब क्या, अब लिगेंड को चेक करो। लिगेंड में तो ऑक्सीजन डोनर है, इट्स अ वीक लिगेंड। तो फिर क्या करें, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो अपन कहेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो आपने क्लियरली बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। तो अपन कहेंगे इसमें तो दोनों डी पहले से खाली पड़े हुए, और भी खाली पड़े हुए। मैं तो यहां से लिख सकता हूं, अच्छा 6 बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 बना देता हूं, मतलब D4 sp बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये लो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अपन कहेंगे ये बन ही नहीं सकता, इन दोनों के अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर इन दोनों के अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता और फिर ये खाली पड़े हुए हैं तो छोड़ दो। व्हाइट इज तो खाली है तो यूज कर लो, बिकॉज दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो खाली तो पड़े हैं। तो अपन कहेंगे भाई आपने कहा था ना कि देखो जैसे मैं कहूंगा आप वैसे ही कैलकुलेशन कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट थ्योरी में इसका मॉडिफिकेशन है कि हम वो दो ही क्यों यूज करें, इवन दो अदर्स ऑर्बिटल खाली पड़े हुए। अच्छा ठीक है, तो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें बस यही ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। उसके अलावा कहीं भी कुछ भी होता है हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूं, मतलब अगर ये ऐसे होता, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कह रहे हैं बस, अगर ये ऐसे होता तो भी मैं कहता कि लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेयरिंग भी तभी होगी जब हमें इनको खाली करना है। अगर ये पहले से ऐसे हैं तो पेयरिंग की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा दूसरे एग्जांपल, अभी तो अपन सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं। मुझे ये पता चल गया कि भाई कोई भी ऑर्बिटल कहीं भी खाली पड़े हो कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पेयरिंग तभी करेंगे, मतलब हम तो यही ऑर्बिटल यूज करेंगे चाहे कोई भी ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 या sp3d2। तो अपन कहेंगे जब ये खाली पड़े हुए हैं तो लीजेंड का इसमें रोल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही खाली है। फिर उनको खाली करने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की बात करते हैं ना अपन, पेयरिंग और अनपेड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तो पहले से खाली है, तो अपन लिखेंगे ना, अगर ये दोनों पहले से खाली है तो फिर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी एम्प्टी, the two orbitals in 3D is already empty, already empty. So there is no effect of strength of ligand. There is no effect of ligand. And the hybridization is D2sp3. And hybridization is D2sp for complex. तो कॉम्प्लेक्स क्या है अपने पास, दैट इज TiH2 होल 6 3 पॉजिटिव। तो अपन ने बता दिया भाई डी ऑर्बिटल में ये खाली पड़े हुए हैं, राइट। तो अपन ऐसे बना देते हैं भाई, ये एक ही था तो इसमें यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे वाटर को। ये 4s हो गया वाटर के लिए, ये 3d था, ये 3d है, ये 4s है वाटर के लिए, और ये 4p है वाटर के लिए।
4p के 3 ऑर्बिटल यूज करेंगे, H2O, ये भी H2O और ये भी H2O. So like this we are able to write the electronic configuration. ठीक है भाई, we got that hybridization is D2sp3 and the magnetic moment is, therefore mu will be equal to 1.732 B है. एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपन बता देंगे भाई इतना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एंड इट इज कलर्ड. ये सारे पार्ट बता दे. अभी मैं एग्जांपल 5 की बात करता हूं. सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, राइट ना. सो मैंने आपको लिखा MnCl6 3 पॉजिटिव, तो अपन कहेंगे Mn प्लस 3, इसमें 3 नेगेटिव होगा क्योंकि Cl माइनस है, तो 3 पॉजिटिव आ गया अपने पास. Mn 3 पॉजिटिव. ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, Ar 4s2 3d5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकिन आपको सबके पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो मैं Mn प्लस 3 के लिए लिख लेता हूं. तो Mn प्लस 3 में मैं 3d लिख लेता हूं. बाकी आपको पता है क्या करना होता है. 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे. ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया. ठीक है ना, ये 3d हो गया. अब अपन क्या करेंगे, द लिगेंड इज वीक, इट कैन नॉट पेयर अप द अनपेयर्ड. मतलब ये खाली पड़ा हुआ है, अगर एक ये पेयरिंग हो जाए तो मुझे D2 मिल जाए. हर एक कॉम्प्लेक्स चाहता है कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो. व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर ये वाले d ऑर्बिटल अपन यूज करेंगे तो मेटल के न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे रादर देन कि अपन 4d यूज करें. 4d में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम. अगर 3d यूज होगा तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू 4d अगर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो. इसलिए हर एक कॉम्प्लेक्स चाहेगा कि उसका 3d ऑर्बिटल बने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये वीक लिगेंड है, सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये पेयरिंग नहीं होगा तो एक d ऑर्बिटल के लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन DsP3d थोड़ी होगा. हाइब्रिडाइजेशन विल बी या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d. सो अपन लिखेंगे सिंस लिगेंड इज वीक, ligand is weak, there is no pairing of electrons. So hybridization will be sp3d2. is sp3d2 and mu will be equal to, वो sp3d2 कैसे इधर से बना हुआ है, इधर 4p यूज कर लूंगा, 4p यूज करूंगा और 4d भी यूज करूंगा. और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई 4.80 होगा. ये मैग्नेटिक मोमेंट है. ठीक है, अब मैंने इसी में लिख दिया कॉम्प्लेक्स के लिए, बिकॉज वी नो दैट वो डिफरेंट स्टेप्स कैसे लिखने. तो अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा होता एग्जाम्पल 6 में, और मैं Mn सपोज कर लेते हैं और मैं Mn लिख लेता हूं और इसमें Cn नेगेटिव लिख लेता हूं. ये NO2 लिख लो, Cn अपन ने काफी लिखा हुआ, NO2 लिख लेते हैं अपन, होल 6. तो फिर अपन कहते हैं इसमें नाइट्रोजन डोनर है, अभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा,
तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन ऑफ Mn+3। तो आप क्या करोगे, Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप ऐसे कर लो, ये तो हो गया 3D, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और ये है 4p, ये बन गया। Since the ligand is strong, the pairing of electron will take place. मैं इसमें pairing करूंगा। Since the ligand is strong, pairing take place, occurs। अगर pairing होगा तो अपन क्या करेंगे, इसका ऐसे लिखेंगे। So pairing of electron will take place due to the presence of strong ligand। अगर pairing होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, pairing लिखेंगे तो it will be like this। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि भाई देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन का ही पेयरिंग किया मैंने, तो क्या इसका भी पेयरिंग कर दूं? नहीं, हम सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे जिससे कि 2d खाली हो जाए, बस। ऐसे नहीं करना कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिए, हमें मतलब हमारा मतलब ये है कि भाई हमारा फोकस सिर्फ D2 पे है, D2sp3 मतलब मुझे 2d चाहिए। अब अगर सारे खाली पड़े हुए हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट थ्योरी में इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा है। हमें मतलब किससे, हमें मतलब है कि भाई हमें 2d खाली होने चाहिए ऑर्बिटल्स, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली थोड़ा जल्दी से अपन ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमें तो D2 से ही फोकस करके रखना है। तो यहां पर इधर अपन क्या करेंगे, आप अगर पेयरिंग करोगे, नो मैटर कितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फर्क नहीं पड़ता, हम तो पेयरिंग बस उतना ही करेंगे जिससे कि हमारे 2d ऑर्बिटल खाली हो जाए, उसके बाद रुक जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करना। उसका रीजन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखेंगे अपन। तो इसका मतलब है कि अभी भी इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये पैरामैग्नेटिक होने वाला है, और ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होने वाला है, बिल्कुल। तो मैं इसको 4s लिखने वाला हूं, और ये 4p होगा, और ये 4d होगा। वैसे 4d लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब 2 अपन को यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गए, मतलब अपना और हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या किया आपने, NO2 लिया था, तो NO2 ने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 12 डोनेट करेगा, वो अपन को ऑलरेडी पता है, EN कैलकुलेट किया अपन ने। और जो डोनर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अपन को पता है कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो इसमें नाइट्रोजन जो होगा, उस पर जो लोन पेयर होगा वो डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू टू द मेटल आयन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अब मैं ना एक जनरलाइज्ड वे लिख रहा हूं, अपन एक जनरलाइज्ड वे लिख लेते हैं कि भाई जिसमें अपन को ये पता हो कि कब हमें क्या, ठीक है ना। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख लेते हैं अपन, और उसके बाद अपन चेक करेंगे अपन को क्या करना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं एक जनरलाइज्ड वे लिखता हूं। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अपन एक बात लिख सकते हैं, देखो भाई, ए पॉइंट लिखते हैं अपन, अगर मेटल लाइन ऐसे है, तो कोई भी मेटल लाइन हो सकता है, अगर मेटल लाइन में 3D कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है,
ये 4d 4p हो जाएगा और ये 4s होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन पॉइंट वन लिख लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है मेटल आयन में, तो लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 होगा। अगर ऐसे है तो भी अपन कहेंगे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, हाइब्रिडेशन तो D2sp3 होगा। और अगर ऐसे है तो अपन कहेंगे अभी भी डजंट मैटर, लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, हाइब्रिडेशन तो D2sp3 होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ राइट ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D फॉर मेटल आयन ऑफ मेटल आयन, है ना, मेटल आयन इज 3D1 to 3D3, the hybridization is D2sp। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे गिवन है दूसरा पॉइंट, सो दूसरे पॉइंट में मैं लिखूंगा इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp। अपन ने यहां भी लिखा। अब अगर मान लो मेटल आयन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, ये 4s है, इधर अपन ऐसे कर रहे हैं, और अपन को गिवन है तो ये ऐसे गिवन है। तो D10 हो गया, अपन कहेंगे कुछ भी खाली नहीं है, sp3d2। ऐसे होता तो भी लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, sp3d2, इसको भी हटा लेते। अब अभी भी sp3d2, अब तो अब कहेंगे कि भाई चेक करते हैं क्या करना है, लेकिन यहां तक अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अब इसमें एक पार्ट हो सकता है, जैसे अपन ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये ऐसे, इसको पेयरिंग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं, लिगेंड स्ट्रांग है या वीक। इफ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना 3D, ये 8 हो गया, 3D10, then hybridization is sp3d2 फॉर वीक हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर पेयरिंग भी करेगा तब भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो फिर अगर 4 से लेके 7 है तो फिर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो 3D4 to 3D7 डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा तो अपन देख लेते हैं। एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मेटल आयन ऐसे है,
अगर 6 है तो वीक लिगेंड होगा तो sp3d2 होगा, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर सकता, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करेगा, तो इसको इसमें पेयर कर देते हैं, इसको इसमें पेयर कर देते हैं, 2 खाली हो जाएंगे, d2sp3 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। 5 होता तो, हाँ तो जो आप बोल रहे थे वैसे ही कर लेता, 5 होता तो इसको इधर ले आता, इसको इधर ले आता, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने देता, 2 खाली हो गए थे, मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता। अगर ऐसे है तो क्या करें? तो ये तो इसमें पेयरिंग कर दूंगा। अगर इसमें पेयरिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड तो ये तो ऐसे हो जाएगा, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना अभी, और हमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये 4d है, 4p है, 4s। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, वेरी फर्स्ट अनऑक्युपाइड एम्प्टी ऑर्बिटल में। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो यूज करेंगे अपन, उन ऑर्बिटल के बाद जो वेरी फर्स्ट खाली अपन दिखा रहे होंगे उसमें उसको शिफ्ट कर देंगे, अगर स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट कर सकता है टू मेक d2sp3। जैसे मैंने आपसे कहा था, ऑल कॉम्प्लेक्सेस वांट टू मेक d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो फोर्स करके पेयरिंग भी कर देंगे, लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो वो फोर्स करके पेयरिंग नहीं कर सकते, रिपल्शन नहीं होगा between the charge of the ligand and the d electron of the metal ion, जो कि हम नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर d2sp3 बनाने के लिए एक ही अनपेड बच रहा है, अगर d2sp3 बनाने के लिए एक ही अनपेड बच रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसे स्पिन आउट करके बाहर ले जाएगा, वीक नहीं कर सकता। मतलब अगर ऐसे होता तो वीक लिगेंड में मैं लिख देता sp3d2, मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.90। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैं इसको वहां शिफ्ट करूंगा, d2sp3 लिखूंगा, एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.73, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर भी रहेगा ना। सो इस केस में मैं कहूंगा ये अगर वहां जाएगा तो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस नहीं हो सकता है। तो इस केस में मैं कहूंगा अगर वीक लिगेंड है तो sp3d2 होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट 3.90 pm। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो d2sp3 होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 pm होगा। A strong ligand can spin out one unpaired electron from the inner orbital to outer orbital to make d2sp3 hybridization। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो फिर क्या करता? तो अपन कहते हैं अगर ऐसा होता तो कुछ भी नहीं होता, लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, भाई दो को स्पिन थोड़ी कर सकता कि दोनों खाली करने के लिए चलो दोनों स्पिन कर देते हैं, एक ही स्पिन हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं। और इसके पेयरिंग से में कोई फायदा नहीं था, 2 स्पिन आउट हो नहीं सकते, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या लिखा था D8 में sp3d2। सो D8 में मैंने लिखा था sp3d2, जैसे यहां पर है कि भाई यहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड dsp2 ही sp3 होगा, यहां पर वीक लिगेंड sp3d2, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड
पेयरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, वो भी sp3d2, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइट इज सो, क्योंकि पेयरिंग करने से भी हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्पिन आउट हो नहीं सकते, और एक पेयरिंग से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमें D2 आइदर इट विल बी D2sp3 और sp3d2। दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज अगर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो कलर भी होगा, अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए था। ऐसे ही हमको बिल्कुल कंसेप्ट विल रिमेन सेम, बस लीगेंड 4 हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बस लीगेंड 4 हो जाएंगे। तो पहले मैं इसमें आपको कुछ कॉम्प्लेक्सीज दूंगा, आप मुझे उनके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताओ और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करके बताओ, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि व्हाट विल बी द राइट। अब एक और बात मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें एक और बात अपन लिखेंगे, इसमें पॉइंट नंबर 4 लिख लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 जो अपन ने 1 2 3 लिखे ना, वैसे ही मैं पॉइंट 4 भी लिख लेता हूं। पॉइंट 4 में विल राइट दैट ऐसे कि भाई इफ मेटल कार्बोनाइल्स आर गिवन, कार्बोनाइल्स आर गिवन, ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनाइल्स अगर गिवन है तो जैसे मैं कोई मेटल कार्बोनाइल ले लेते हैं अपन और बता देते हैं भाई इसमें कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट। तो मेटल कार्बोनाइल में अपन कोई भी एक ऐसे कार्बोनाइल ले लेते हैं, जैसे अपन लिखेंगे भाई कोबाल्ट हो गया अपने पास, और कोबाल्ट से छोटा ही लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा वेनेडियम CO6 और ये -1, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला भी एक लिख लेते हैं। सो इफ द मेटल कार्बोनाइल्स आर गिवन और नेगेटिव चार्ज भी गिवन है, तो चलो देखते हैं क्या करना है। चार्ज ऑन CO is 0, चार्ज ऑन मेटल आयन V-1, भाई वेनाडियम है और -1 चार्ज ले रखा है। एक एग्जांपल अपन मेटल आयन कार्बोनाइल भी ले लेते हैं, और अपन ने सारे पॉजिटिव वाले एग्जांपल लिए, नेगेटिव वाला एक भी नहीं लिया आपने, तो अपन एक तो ले ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अपन को सारी चीजें पता है क्या करना है। अब आप कोई भी चार्ज दो, लीगेंड का नेचर भर मुझे आना चाहिए, मैं अपने आप ही कैलकुलेट कर लूंगा इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी, तो V का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगा Ar23 होता है एटॉमिक नंबर, तो 4s2 3d3। अब -1 लिखोगे तो 3d4 हो जाएगा, -1 लिखोगे तो 3d4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी नोज दैट कि -1 लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसके लिए अपन लिख लेते हैं और बताते हैं अपन क्या करना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आई राइट दैट Ar, और इसमें मैं लिख लेता हूं दैट इज अपन बॉक्स वाला बना लेते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आप लिखोगे 1 2 3 4 हो गया, और इधर 4s2 हो जाएगा, और इधर 4p लिखा, ये लिखा भाई मैंने। अगर किसी को डाउट है तो वो बता सकता है कि आपने ऐसे लिखा क्यों। तो ये था, मैंने -1 के लिए लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम 23 होता है तो 4s2 3d3 होगा, लेकिन वो -1 चार्ज है वेनेडियम पे। Got it? Since the ligand is strong, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो अपन ने स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड लिखा हुआ है, since ligand is strong, so pairing will take place, ठीक है भाई।
तो वेनेडियम CO होल 6 -1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं अपन। अब अगर आप ये लिखोगे तो आप ऐसे बता दोगे भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे बना लेता हूं, ये 4s हो जाएगा और ये 4p है। तो ये 4s है, ये 4p है, ये 3d है, लाइक दैट वी कैन राइट। और यहां पर मैं 4d भी लिख सकता हूं, ये आपका 4d। तो अगर 4d होगा तो अब अपन पेयरिंग की बात, अब अपन पेयरिंग की बात करते हैं। तो पेयरिंग देखो कैसे करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर ले आते हैं और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसमें ले आते हैं। अच्छा, 4s के इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ जाएंगे, हाँ। लेकिन अब तक अपन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे उसमें मेटल लाइन पे पॉजिटिव चार्ज था ना, इसलिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते थे भाई। अगर 3D एलिमेंट लिखोगे तो सबका कैटायनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट एटलीस्ट +2 तो रहेगा। और वैसे भी अपन को पता है कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है और Mn से लेके जिंक तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है। तो वी आर एबल टू राइट दैट, मतलब अगर 4s में इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी पेयरिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। हाँ बिल्कुल, अगर 4s में इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से उनका भी पेयरिंग हो जाएगा। मतलब टोटल मुझे 6 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग 3D में लिख देना है। हाँ बिल्कुल। तो इधर 4 थे, 2 इधर थे, तो सब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए मेरे पास। बिल्कुल, लिखो आप 6 इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई। इसका पेयरिंग इसके साथ कर दिया, कर दिया। इसका पेयरिंग इसके साथ कर दिया, ये लो भाई कर दिया। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लिखो, ये लो। तो फिर बाकी तो अपन लिखेंगे अब कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। सो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, कलरलेस। तो एक एग्जांपल करने कार्बोनिल का भी ले लिया भाई, तो उसमें पर बता देंगे इसमें कैसे बन को बताना है। तो आई कैन राइट लाइक दिस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स, ये D2 है, ये S है और ये P3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। और इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन इसको ना मतलब सभी के लिए लिख सकते थे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अपन को पता है क्या। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अपन को पता है क्या। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब उनकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ एक जैसा। और इधर ये अलग होंगे, तो ये तभी तो अपन D2sp3 बोल रहे हैं। ईच ऑर्बिटल विल बी D2sp, दैट इज नोन टू अस। ठीक है, तो वी कैन राइट दैट कि भाई हमें कैसे बताना है। और हाइब्रिडाइजेशन अपन ने क्या लिखा हुआ है, D2sp3, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, D2sp3 हो गया एंड म्यू विल बी इक्वल टू 0।
so it is colorless. बाकी मुझे लिखने की जरूरत, ये सारा पार्ट आपको पता है, इसको देख के आप बता सकते। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उसके आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं इसको हटाता हूं और आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूं, उसमें आप थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे। तो मेरे पास गिवन है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। तो राइट द hybridization and magnetic moment of complex. तो मैं यहां पर ना एक टेबल जैसा बना रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक आप बता दीजिए, CrH2O होल 6 बी पॉजिटिव, NiCl will read that like this, that is scandium H2O whole 6 2 positive, cobalt NH3 2 positive, copper H2O 2 positive, Mn cobalt C2O4 2 positive, और I can write 3 positive, और एक और लिख लेता हूं, that is FeCO whole 5। ये कंपाउंड्स है और इनके लिए अपन को कैलकुलेट करके बताना है। तो चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर दिस कॉम्प्लेक्स,
शुरू करूं? चेक करें हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, मेरे ख्याल से काफी टाइम दिया मैंने। अगर आप लोग और टाइम चाहते हैं तो यू हैव टू टेल मी कि आप और टाइम दीजिए, अदरवाइज चलो देखते हैं कैसे करना है अपन को सब। ठीक है ना? अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो मैं ना 3D वाले को ही चेक करूंगा, इसको बस 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयन। अब जैसे बनेगा भाई, मेटल आयन जो है वो हमारा क्रोमियम 3+ है, तो क्रोमियम तो 3D5 और 4s1 होता है, तो 3D5 और 4s1 में क्या होगा, ये 3D5 था और 4s1 था, तो +3 के लिए मुझे इससे एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इससे, मतलब 3 ही बचे हुए हैं। मतलब क्रोमियम +3 में डजंट मैटर कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगा D2sp। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, D2sp। और मैग्नेटिक मोमेंट 3.90। व्हाइट इज सो, हम कहेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनको पेयर नहीं करेगा? नहीं, मैं तो तब से आपसे यही तो बोल रहा हूँ कि हमें तो 2 ऑर्बिटल से मतलब है, वो खाली है तो फिर कोई अनपेयरिंग नहीं होगी। लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी लाइक दिस। ऑलरेडी वो तो खाली पड़े हुए हैं, तो मतलब लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा फिर इसमें। लिगेंड स्ट्रांग होता है या वीक होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बिकम D2sp। अगर स्ट्रांग लिगेंड भी होता तब भी मैं उसको ऐसे लिखता, जरूरत ही नहीं है उसके पेयरिंग की। स्कैंडियम, स्कैंडियम की बात करेंगे तो वो भी +2, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 4s2d1। अब आपने +2 लिखा हुआ है स्कैंडियम को, तो +2 में मैं इसको हटा दूंगा तो ये +2 हो जाएगा। मतलब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अभी लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो हमें क्या फर्क पड़ता है, इट इज D2sp। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रहेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसकी वजह से, तो इसमें भी D2sp और इधर 1.7। ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो कलर भी होगा। नेक्स्ट इज कोबाल्ट। अगर इसको आप कोबाल्ट लिखोगे तो कोबाल्ट तो होता है 4s2 3d7। ठीक है भाई, अब क्या करें, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब +2। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स दिस 7 के। नाउ चेक द लिगेंड। लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक तो मैं पेयरिंग कर दूंगा और दूसरा एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बाहर स्पिन आउट कर सकता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर देंगे, स्पिन आउट कर देंगे। तो रीड दैट, अपन कहेंगे भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 और मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी, क्योंकि इवन स्पिन आउट करोगे बट कॉम्प्लेक्स में एक अनपेयर्ड तो रहेगा ना, तो 1.73 कर दिया, ये रहेगा। उसके बाद अपन कहेंगे भाई कॉपर है, हाँ तो कॉपर के लिए तो अपन को पता है कॉपर +2 है ना, तो इट विल बी 3d9। 4s1 3d10 होता है, तो एक इससे निकाल दिया एक इससे निकाल दिया, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 3d9 होगा तो विल राइट लाइक दिस 3d9 के लिए। तो अभी इसमें लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो हमें क्या फर्क पड़ता है, ना तो पेयरिंग हो सकती है कुछ भी नहीं हो सकता।
हमें तो sp3d2 ही बताना पड़ेगा। तो sp3d2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1, लो बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट का मतलब तो ये हो जाएगा, और 3+ का मतलब, तो कोबाल्ट 3+ लिखूंगा तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 6, मतलब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हो गए 6 अनपेड। अब क्या, अब तो C2O4 2 नेगेटिव है, ऑक्सिलेट है, तो डोनर एटम में यू स्टेट दैट कार्बन अच्छा डोनर होता है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन अच्छा होता है, कार्बन अच्छा डोनर होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन अच्छा डोनर है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन अच्छा डोनर है हेलोजन से। ये गुड डोनर एटम, सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये पुअर डोनर एटम, सो वीक लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऐसे बताते हैं अपन। लेकिन अगर ऑक्सीजन डोनर एटम साइक्लिक रिंग का पार्ट हो, मतलब साइक्लिक रिंग में हो, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है लेकिन साइक्लिक रिंग में, मतलब जैसे इसमें हो रहा है, डोनर एटम तो ऑक्सीजन है, डोनर एटम तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये रिंग बना रहा है मेटल के साथ। तो अगर ऑक्सीजन डोनर एटम साइक्लिक रिंग कीलेशन कर रहा है, इसको अपन कीलेशन बोलते हैं, अगर वो कीलेशन कर रहा है तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर कोई भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स साइक्लिक रिंग बनाएगा, मतलब कीलेशन शो करेगा, तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड if it forms chelates, अगर वो चेलेट्स बनाता है तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर वो चेलेट्स बनाता है तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो अगर वो चेलेट्स बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो अपन क्या करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा तो विल राइट लाइक दिस। फिर तो D2sp3 हो गया, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, और 0 हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, 0 होगा मैग्नेटिक मोमेंट। अपन बता देंगे भाई क्या करना है अपन को। तो इस वाले पार्ट को अगेन एंड अगेन आप हमेशा याद रखो, इस वाले पार्ट को, क्योंकि इससे अपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो आप ऐसे बता सकते हो। अब मैं दूसरा पार्ट चेक करता हूं। अब ना किसी ने पूछा है भाई फोर्थ वाले पार्ट को फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो कॉपर है ना अपने पास, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d10, कॉपर वाले। तो कॉपर +2 है, वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो +2 के लिए अपन क्या करेंगे, एक इससे हटा दो और एक इससे हटा दो, 3d9। अभी 3d9 होगा तो 9 के लिए तो विल राइट लाइक दिस। अब ना तो इसमें पेयरिंग तो हो नहीं सकती, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से मुझे D2 मिल नहीं सकता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4s को यूज करना शुरू करो और P को, तो sp3d2 हो जाएगा, लिखा, क्योंकि पेयरिंग हो नहीं सकती, तो ऑलरेडी पेयर्ड है, वही एक अनपेयर्ड है, और स्पिन आउट करने से एक डी खाली मिलेगा, और वैसे भी वो वीक लिगेंड था, स्पिन आउट की तो बात ही मत करो, वीक लिगेंड कुछ नहीं कर सकता।
अब अपन बात करेंगे Fe की, और वो मेटल आयन नहीं है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो वैसे मैंने वो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ले रखा है, अगर देखा होगा तो वो 6 नहीं है, मैंने 5 ले रखा है वहां पर, वैसे डाल दिया मैंने लास्ट में। तो अगर चेंज किया किसी ने तो अपन क्या करेंगे, अपन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, Fe है 3d6 और 4s2 होगा, Fe 0 है तो ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अपन लिखेंगे भाई 3d5 ऐसे हो गया, और 4s है तो 3d6 है और 4s है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर D5 है तो 5 में तो D2 नहीं होगा, इट विल बी D, गॉट इट ना, इट विल बी D, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब इसमें ना कोबाल्ट का अगर आप +3 चार्ज ले रहे हो तो आपको 3 माइनस लिख देना चाहिए, बिल्कुल 3 नेगेटिव लिखेंगे अपन, है ना। तो अपन क्या करेंगे, उसमें 3 नेगेटिव, वो -2 चार्ज होता है क्योंकि उस पर बिल्कुल होगा। अपन क्या करेंगे, अब इसमें तो सारा सारा का सारा पेयरिंग हो सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें ना आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दे रखा है, तो इसमें sp3 होगा या फिर sp3d होगा, 5 बॉन्ड है ना, तो या तो dsp3 होगा या फिर sp3d होगा। तो अब अपन कहेंगे भाई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपने चेंज किया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करोगे तो मैं हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने 6 के लिए बताया था, मुझे इसके लिए थोड़ी बताया था। तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर शायद चेंज करे, शायद नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चेंज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा जो हमने इन सब, फोर्थ तो अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिखेंगे भाई ये तो ऐसे हो जाएगा, ये इधर पेयरिंग कर दो सारे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ले आए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ले आए, और जैसे मैंने लास्ट में एक कार्बोनाइल बनाया था, वेनेडियम कार्बोनाइल, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी अंदर लेके आ जाओ, ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में इसमें लेके आ, ये खाली है और आपने बताया dsp3 हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, dsp3, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था ना तो पेयरिंग तो होना ही था, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्या दे रखा है यहाँ पर 5, तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल थे, तो मैंने लिखा क्योंकि सभी हाइब्रिडाइजेशन, सभी कॉम्प्लेक्सीज इनर डी ऑर्बिटल यूज करना चाहते हैं, तो पेयरिंग के बाद एक, ये भी पेयरिंग के बाद एक ऑर्बिटल खाली आ रहा था, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से कोई एक है तो अपन डी वाला ही यूज करेंगे, और कार्बोनाइल तो CO तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है जो अपन ने लिखा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, dsp3, और dsp3 होगा एंड म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, अगर मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर dsp3 या sp3d होगा तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ट्राइंगल बना के बाइपिरामिड कैसे बनाते हैं, वी नो दैट, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp3 और मैग्नेटिक मोमेंट है 0।
We got the hybridization, we got the magnetic model. So ये अपन लिख सकते हैं भाई, और अब अपन यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि बाकी बच्चों के स्कूल के एग्जाम भी होंगे और स्कूल वाला पार्ट भी होगा, तो नेक्स्ट टाइम अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बचा हुआ है, आपका होमवर्क मैं व्हाट्सएप पर टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द होमवर्क। होमवर्क में पहले अपन डिस्कस करेंगे ऑफ सॉलिड स्टेट, फिर ORM 1। पहले सॉलिड स्टेट डिस्कस करेंगे, ORM 1 और इसका सेक्शन ABC ऑफ एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो इवनिंग में होगी। आपके पास टाइम टेबल होगा, मैं टाइम टेबल में चेक कर लेता हूं। अब जो क्लास है इस वीक का वो इवनिंग में होगा, सो दैट कि आप लोग रात को भी पढ़ सको, क्योंकि काफी बच्चों का था कि सर क्या हम रात को पढ़ सकते हैं। रात को पढ़ेंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे ना फिर, और सुबह उठना होगा तो पूरा दिन तुम लोग होमवर्क भी नहीं कर पाओगे और क्लासेस में टाइम वेस्ट करोगे। तो सुबह सुबह ना उठो चलेगा, लेकिन रात को टाइम मतलब आप होमवर्क करो, कंप्लीट करो। होमवर्क कंप्लीट करना कंपल्सरी। तो रात को आप लेट नाइट भी पढ़ोगे तो सुबह उठने का टेंशन नहीं रहेगा रोज। अदरवाइज मुझे लग रहा था रोज सुबह उठने का टेंशन, जैसा मुझे बताया गया, मतलब फिजिक्स वाले सर ने भी बताया कि वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा हो सकता है इसलिए नहीं हो रहा होगा कि रात को नहीं पढ़ पा रहे बेचारे बच्चे, उनको टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन आप पढ़ो, क्योंकि जिस दिन अपना लॉकडाउन खुला उस दिन एक रिवीजन जरूर होगा, और वो अपन डायरेक्ट रिवीजन फटाफट करेंगे। कंसेप्ट सीखने में टाइम लगता है, रिवीजन और एक्सेप्शन सीखने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, चलो फिर आज अपन इतना ही पढ़ते हैं।